بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج تک کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ اب کس نمبر 3 ملاحظہ فرمائیں۔ صدمے سے میرے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت معوف ہو گئی تھی اور میرا ذہن حقائق کے جوالا مکھی کے پھٹنے سے جلس رہا تھا۔ میرے خون کا ہر قطرہ تیزاب بن کے لہو میں آگ کی طرح پھیل رہا تھا اور انتقام پکارنے لگا تھا۔ میرا دل چاہتا تھا میں چیخ کر روؤں، دنیا کو بتاؤں کہ وہ بد نصیب اور جہنمی بیٹا ہوں میں، جس کے لیے دنیا اور آخرت میں سیاہی کے سوا کچھ نہیں۔ خون کا یہ آخری رشتہ تھا جو سلامت رہ گیا تھا، میں نے اس کی قدر نہ کی۔ ایک بار تقدیر نے جدا کیا تھا تو ملا بھی دیا تھا، دوسری بار میں نے اپنا مستقبل سنوارنے کی تدبیر کی اور 7 سمندر پار سفید فاموں سے 200 سال پہلے کے مظالم کا بدلہ لینے کے بہانے انگریز لڑکیوں سے معاش کے لڑاتا رہا تھا۔ یہاں اپنے ہم وطن جو میرے باپ کے دشمن تھے اس پر انسانی سود مظالم ڈھاتے رہے۔ اس نے اپنی زندگی کے لیے تمام مصائب اور آلام قبول کیے مگر حرف شکایت زبان پر نہ لایا، کہیں اسے میرے مستقبل کے خواب پریشان نہ ہو جائیں۔ وہ مجھے باقاعدگی سے اتنی رقم بھیجتا رہا کہ جو میری تعلیم کے علاوہ میری عیاشی کے لیے بھی کم نہ تھی، اور خود محرومیوں کے عذاب میں گرفتار رہا۔ بچے کچھ ٹکڑوں سے پیٹ بھرتا رہا اور اپنے نوکروں کا نوکر بن کے شکر و صبر کے ساتھ ہر ذلت برداشت کرتا رہا۔ تمہیں عمدن بے خبر رکھا گیا تھا کبیر، ایک نادیدہ خیر خواہ کی آواز میرے ذہن میں گونجی۔ صحت اور کاروبار دونوں ٹھیک ہیں الحمدللہ۔ میرے والد کی آواز نے ہزاروں میل کی مسافت طے کر کے ٹیلی فون کی زبان سے جھوٹ بولا۔ خدا نخواستہ آج تمہارے والد کو کچھ ہو گیا تو تم کیا کرو گے؟ اس نادیدہ خیر خواہ نے کہا، جب تک میں ہوں یہ سوچنا تمہارا کام نہیں کہ کل کیا ہوگا۔ میرے والد نے ہنس کر ٹال دیا۔ 30,000 روپے ماہانہ کی آمدنی کا مالک، وہ بوڑھا جس کا اکلوتا بیٹا لندن میں اعلیٰ تعلیم کے بہانے عیش کر رہا تھا، وزیر خان جو ماڈل ٹاؤن کی ایک کوٹھی سے کار میں بڑی شان سے نکلتا تھا، جو میر وزیر اینڈ کمپنی کا مالک تھا۔ میر شرافت علی نے کہہ مار کے کہا، وہ بوڑھا جو کندھے پر جھاڑن رکھے سارا دن صوفے اور بیز کرسیاں، گلدان اور سامان آرائش، کھڑکیوں کے شیشے اور فانوس جھاڑتا پھرتا ہے، جو گینٹھیا کے لیے خیراتی شفا خانے سے رنگ دار پانی اور اسپرین کی گولیاں لا کے شفا کی امید رکھتا ہے۔ امید کیا خود فریبی کا جال ہے۔ وہ بوڑھا اپنے اکلوتے بیٹے کے سنہرے مستقبل کے لیے زمانے کی ٹھوکروں میں رہا۔ مستقبل تو سراب تھا اور ان حالات کا ذمہ دار صرف ایک شخص تھا۔ بہت دیر بعد جب غید و غضب، تاسف اور ملال اور پشیمانی اور پریشانی کے جذبات کی تباہ کن لہر کا زور ٹوٹا تو میں ایک بالکل مختلف اور بدلا ہوا انسان تھا۔ میرے خیالات و احساسات بدل چکے تھے، میری ذہنی کیفیت میں وہ انقلاب آ چکا تھا جس نے مجھے زندگی کے مقاصد کا نئے سرے سے تعین کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ پہلے میں خوابوں کے محل تعمیر کر رہا تھا، اب میں بے رحم حالات کی اندھیری میں کھو جانے والے گھر کے ویران کھنڈر پر کھڑا نوحہ خواں تھا۔ مجھے اسی ویرانی میں اپنی گمشدہ جنت بنانی تھی اور تعمیر کے خواب کو تعبیر دینے سے پہلے ان سب کے خون سے بنیادوں کی آبیاری کرنی تھی جو اس تباہی و بربادی اور تخریب کے عمل میں شریک تھے اور بھول گئے تھے کہ آنے والا دن یوم مکافات بھی ہو سکتا ہے۔ میری فہرست میں پہلا نام میر شرافت علی کا تھا اور دوسرا چراغ دین کا تھا۔ میں نے اپنے آپ سے عہد کیا کہ اس گمنام خط کے مندرجات درست ثابت ہوئے اور مجھے اپنے باپ کی قدم بوسی کے لیے سی ڈین کی کوٹھی کے سرونٹ کوارٹر کی بجائے اس کی قبر پر فاتحہ پڑھنے کے لیے جانا پڑا تو میر شرافت علی کو اس قتل پر اپنے ہاتھوں سے سزائے موت دوں گا اور چراغ دین سے سی ڈین بن کے میرے باپ کی تذلیل کرنے والے کو وہ سزا دوں گا کہ اس ذلت کا تماشا باعث عبرت ہو۔ اس فیصلے کے بعد میں نے محسوس کیا کہ غموں دو کے اچانک ٹوٹ پڑنے والے کو گراں کا بار اتنا ہلکا ضرور ہو گیا ہے کہ میں سانس لے سکوں۔ میرپور کے اصیل باشندے یعنی محترم ڈش واشر نے میری حالت کے تغیر کو محسوس نہیں کیا تھا، مگر کالا صاحب میرے نماک اور میری صورت کے تاثرات کا بغور مشاہدہ کرتا رہا تھا۔ آر یو آل رائٹ؟ اس نے بہت دیر بعد کہا، جبکہ میں خط کو جیب میں رکھنے کے بعد آنکھیں بند کیے نیم تراز تھا۔ اس خط میں کوئی بہت تشویش کی بات تھی؟ اس نے کہا، مجھے اندیشہ تھا کہیں تمہیں ہارٹ اٹیک نہ ہو جائے۔ میرا دل پتھر کا ہو گیا ہے، میں نے کہا، میں خود ایک پتھر ہوں، شیشے کے انسانوں کو مجھ سے ڈرنا چاہیے۔ کالے صاحب کی سمجھ میں کچھ نہ آیا، اس نے باہر دیکھتے رہنے کو ترجیح دی۔ میں نے اس کا نام مشکوک افراد کی فہرست میں سے کاٹ دیا اور باقی مسافروں پر ایک نگاہ ڈالی کہ ان میں سے کون صورت سے کرائے کا قاتل لگتا ہے، لیکن سب چہرے ایک جیسے اجنبی تھے، ملکی و غیر ملکی، سفید فام اور گندمی رنگ والے، جوان اور بوڑھے، سب اپنے اپنے خیالات میں محو تھے، مگر کسی صورت پر قاتل کا گمان نہ ہوتا تھا اور سب قاتل ہی لگتے تھے۔ بھائی دیوے، کالے صاحب نے اچانک کہا، کیا میں آپ کی کوئی مدد کر سکتا ہوں؟ مدد کے جذبے سے زیادہ یہ تجسس کا جذبہ تھا جو اسے دخل در معقولات پر اکسا رہا تھا۔ ہاں، میں نے ایک سردہ بھر کے کہا، آپ یہ بتا دیں کہ میں نے کمرہ نمبر 203 کو 302 سمجھنے کی غلطی کیوں کی تھی، اور اگر ادھر کا انسان ادھر نہ ہوتا تو کیا ہوتا اور کیا نہ ہوتا؟ میں کچھ سمجھا نہیں، کالے صاحب نے چکرا کے کہا، ادھر کا انسان ادھر میں بھی نہیں سمجھا تھا کہ فومانچو میرا خیر خواہ ہے۔ میں نے افسوس سے سر ہلا کے کہا، کاش میں فومانچو سے مل لیتا۔
उसने मुझे मखबूत अलखवास किस्म का नामाकूल इंसान करार देते हुए मजीद गुफ्तगू से एतराज़ करना बेहतर समझा। कई घंटे बाद जब जहाज का रुख इस्लामाबाद से लाहौर की तरफ किया गया तो उन्होंने मजीद एक जुमला इरशाद किया था कि प्लेन क्रैश कर रहा है तो साफ क्यों नहीं बताया जाता, मगर मुझसे मुखातिब हो के नहीं। आखिरी बात लाहौर एयरपोर्ट पर हुई जब उन्होंने नागवारी से कहा कि अगर मेरा इरादा जहाज ही में बैठे रहने का है तो मैं इनको गुजरने का रास्ता दे दूं, और मैंने हैरान होकर देखा तो जहाज वाकई लाहौर एयरपोर्ट पर खड़ा था। सीट बेल्ट जो मैंने गैर शऊरी तौर पर बांध ली थी अभी तक मेरे जिस्म पर कसी हुई थी। मैंने अपने सफर को लाहौर ही में खत्म करने का फैसला किया था। जब मैंने अपने असबाब और दस्तावेजात वगैरह को कस्टम की चेकिंग के लिए पेश किया तो मुझे अपने साथ चंद और मुसाफिर भी नजर आए। एक बूढ़ा अंग्रेज और उसकी निस्बतन जवान बीवी, वो सियाह या रिसर्च स्कॉलर वगैरह हो सकते थे जो टेक्सला के गड़े मुर्दे उखाड़ने आते रहते हैं। दूसरा विलायती जोड़ा अंदाज़ो एतवार की बेफिक्री और लाउबाली पन से हनीमून मनाने के मूड में नजर आता था, और उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था कि जहाज कहाँ उतरा है। वो बहरहाल काहिल या माउंट एवरेस्ट पर भी इतने ही खुश नजर आते। बाकी दो अंग्रेज मशीन सूरत और मुअज़्ज़ज़ किस्म के कारोबारी या सिफारती अमले के आला अरकान हो सकते थे। उनको मैंने फर्स्ट क्लास से बरामद होते देखा था। उनमें से किसी को किराए का कातिल समझना बड़ी गैर मुंतकी सी बात लगती थी। उनसे दुगनी तादाद में पाकिस्तानी मुसाफिर थे जिनको शायद मेरी तरह लाहौर ही आना था। सिर्फ 3 के साथ उनका कुंबा भी था, बाकी मेरी तरह तनहा भी थे। मैंने बगौर उनकी सूरतों को मुलाहिजा किया, मगर कातिल अगर पेशावर हो तो चेहरा दूर नकाब में रखता है। अपनी बारी आने पर मैंने कस्टम की रस्मी कार्रवाई पूरी की। मेरे पास डिक्लेयर करने को कुछ नहीं था। कमाल है, आप 3 साल लंदन में रहे और अपने साथ कुछ नहीं लाए। अमले के एक रुकन ने नाकाबिले यकीन मशकूक लहजे में कहा, मसलन क्या कोई मेम वगैरह? मैंने कहा, मैंने सुना था इस पर ड्यूटी बहुत ज्यादा है, खुआ मुखा जब्त हो जाती। बादल ने खासा उन्होंने मुझे जाने की इजाजत दे दी। टैक्सी सर, एक अलर्ट किस्म के शख्स ने मुझे गार्ड ऑफ ऑनर पेश करने के बाद कहा, और मुझे ताज्जुब हुआ कि सिर्फ 3 साल में मेरे मुल्क के टैक्सी ड्राइवर इतने मुहज्जब और शाइस्ता हो चुके हैं। लेकिन रेलवे स्टेशन जाने का किराया उसने 100 रुपए मांगा और राजदार लहजे में कहा कि ज़रे मुबादला की सूरत में 5 पाउंड भी कबूल होंगे तो मेरी खुशफहमी दूर होगी। उसी वक्त दूसरी टैक्सी मेरे सामने आ रुकी और एक बार फिर मुझे ताज्जुब हुआ क्योंकि दूसरे टैक्सी ड्राइवर ने कोई सौदा नहीं किया। जो मीटर बताएगा जनाबे आली वही लेंगे, उसने कहा। रास्ते में उसने मुल्क को बदनाम करने वाले लुटेरे टैक्सी ड्राइवरों के खिलाफ लेक्चर दिया। लेक्चर का हिस्सा 2 जिसमें रिज़्क़े हलाल की अहमियत का जिक्र था अभी जारी था कि टैक्सी ने शमला पहाड़ी का मोड़ काटा तो मेरे दिल की धड़कन यकलख तेज हो गई। अभी 1 महीना कबल मैंने इनसे बात की थी। उसके बाद मुझे ड्राफ्ट मौसूल हुआ था। बोतल यहाँ के मेरे वालिद से जरूर मिला होगा। कोई ऐसी वैसी बात होती तो वो जरूर लिख देता, मगर उसने तो एक खत भी नहीं लिखा था। और खुद मेरे वालिद का आखिरी खत कब आया था? कहाँ जाना है आपको जनाबे आली? टैक्सी ड्राइवर ने आहिस्ता से ब्रेक लगाई और पलट कर कहा। मैंने चौंक कर इधर उधर देखा। यकलख्त मेरी निगाह स्याह प्लास्टिक की तख्ती पर उभरे हुए सफेद प्लास्टिक के रोशन हरूफ पर गई। सीसी डैन, मैंने जेरे लब कहा, बस यहीं जाना था। फिर मुझे एक और ख्याल आया, तुमने यहाँ टैक्सी क्यों रोकी? मैंने तो रेलवे स्टेशन कहा था। तो रेलवे स्टेशन ले चलते हैं जनाबे आली, टैक्सी ड्राइवर ने ठीक लाहौरी लहजे में कहा। नाराज होने की तो कोई बात नहीं, आपने जहाज से उतरकर गड्डी पर चढ़ना था। मैंने इस टैक्सी ड्राइवर को 2 पाउंड दिए जो असल किराए के दुगने से भी ज्यादा थे। चुनाचे उसने खुशी खुशी रख ली और मेरा सामान उतरवा कर कोठी के दरवाजे तक भी ले गया। अभी मैं काल बैल बजा के किसी के नमूदार होने का इंतजार कर ही रहा था कि मैंने टैक्सी ड्राइवर को इंजन स्टार्ट करने की नाकाम कोशिश के बाद बोनट खोलते और बड़बड़ाते देखा। 2 मिनट बाद मैंने चौथी बार घंटी का बटन दबा दिया तो वो बोनट बंद करके राहगीरों से दरख्वास्त कर रहा था कि गाड़ी को धक्का लगा दें। गेट के अंदर का एक छोटा गेट खोलकर जो शख्स सख्त बड़ा फरोख्तगी के आलम में बाहर आया, उसके कपड़ों के दाग और उसके जिस्म से फूटने वाली खार खुशबू खबर देती थी कि वो खानसामा है। वो 50-55 साल का पहलवान टाइप शख्स था। घंटी पर घंटी बंदे को अंदर से बाहर आने में वक्त तो लगता है, कुछ सब्र भी करना चाहिए। मालूम होता है वलायत से आ रही है सवारी, उसने तन से कहा। मैं वाकई वलायत से आया हूँ, मैंने कहा। मुझे वजीर खान से मिलना है। उसकी सूरत के तासरात एक लम्हे में बदल गए। मेरा दिल डूबने लगा। अगर तुम्हें मालूम हो कि वजीर खान का इंतकाल हो चुका है तो तुम्हारे लिए ये सदमा गैर मुतवक्के ना हो। मुझे खत के अल्फाज याद आए, मगर उसके बावजूद सदमा गैर मुतवक्के साबित हो रहा था। कौन हो तुम बरखुरदार? खानसामा ने नरमी से कहा। बड़ी देर से आए। मैंने सारे के लिए इधर उधर हाथ फैलाए। मेरी नजरों के सामने सुर्ख अंधेरा फैलने लगा था और जमीन डूबने लगी थी। गेट पोस्ट की दीवार ने मुझे सहारा फराहम कर दिया। मैं उनका बदबख्त बेटा हूँ, मैंने बमुश्किल तमाम कहा। कौन? सिकंदर बख्त जो विलायत में पढ़ रहा था? बूढ़े खानसामा ने अपना लहजा हमदर्दाना रखने की वाजिबी सी कोशिश की, मगर इस लहजे में मुलामत का रंग गालिब था। अब आने की क्या जरूरत थी बरखुरदार? उस गरीब को हम 1 हफ्ता पहले मियाँ साहब के कब्रिस्तान में दफन कर चुके हैं। मुझे बिल्कुल मालूम नहीं था। मैं खला में देखते हुए आंसू मेरी आंखों से निकलकर फर्शे खाक पर गिरते रहे
उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया। यही तो फर्क है जमाने का, खानसा माँ बोला। उसने सारे दुख उठाए, इसलिए खामोश रहा कि बेटे की तालीम में खलल ना पड़े। बेटा ठाठ से बुलाए जाके बैठ गया साहब बनने के लिए। साल में एक बार भी खबर लेने नहीं आया। कसूरवार तो मरने वाला ही हुआ ना कि तुमको बेखबर रखा। तुम्हारा फर्ज कहाँ था उसकी खबर रखना। उसने गहरी सांस ली और मेरे दोनों सूटकेस उठा लिए। खैर अब रोने धोने की बजाय उसकी मगफरत की दुआ करो, आओ मेरे साथ, चलो शाबाश, सबर करो। मैंने आस्तीन से आंसू खुशक किए और उस कोठी में दाखिल हो गया जो मेरे वालिद के एक नमक हराम मुदादम ने गबन की कमाई से खड़ी की थी, और जहां मुदादम ने आका को 300 रुपए महाना पर जलील करने के लिए रख लिया था। वो मेरी वजह से मजबूर ना होता तो बेगैरती की जिंदगी पर बहुत पहले मौत को गले लगा चुका होता। लेकिन जिंदगी के सारे सारों की शिकस्त के बावजूद वो मेरे लिए जिंदा रहा। मेरे नादीदा खैर ख्वाह के ख्याल के मुताबिक उनकी जिंदगी की वायद काबिल फख्र कामयाबी मैं था। उस खानसामान टाइप शख्स के पीछे चलते हुए मैं सोचता रहा कि मेरे नाम और मेरे लंदन में ज़ेरे तालीम होने के अलावा इसको हकाइक का इल्म किस हद तक है। क्या वो जानता है कि वजीर खान पहले क्या था और चिराग दीन या शराफत अली जैसे लोगों ने ज़मीर फरोश के इस अलमिये में क्या किरदार अदा किया है। अगर वजीर खान ने हालात पर राजी बर रजा रहने की मजबूरी को मेरी वजह से कबूल किया था तो क्या उसने ये दुखड़ा दूसरों के सामने रोया होगा? नहीं, ऐसे तो बात फैल जाती और कोई चिट्ठी लिख मारता तो उसकी रियादत वाकई राय कहाँ जाती। खान साहब माँ ने कहा, ये अपना क्वार्टर है बरखुरदार, मैं बावर्ची हूँ सलामत शाह। इसी के एक कमरे में वजीर खान मेरे साथ रहता था। मैंने कोठी के अगर में बने हुए वैरान और खस्ता हाल सर्वेंट क्वार्टर को देखा और उस कोठी का तस्वुर किया जिसमें मेरे विलायत जाने से पहले मेरे वालिद मुकीम थे। मेरे जहन में एक तस्वीर उतर आई जिसमें पूरी कोठी के हर कमरे का नक्शा था और मेरे वालिद के तमाम मामूलात थे। पुरानी वजह की खिड़कियां बुलंद और नीम दायरे की शक्ल के रंगीन शीशों वाले रोशनदान, मेहराबी दरवाजे जिनकी पाले से दमकती सतह पर जुड़ी हुई पीतल की कीलें सोने की लगती थी। उसके सामने वाला लान जिस पर बैठ के मेरे वाले सब्जी और फूलों की महक में लंबे लंबे सांस लेकर बड़ी फरत महसूस करते थे। अखबार पढ़ते थे और शाम की चाय पीते थे जो ट्राली में सजा के एक मुलाजिम उनके पास छोड़ जाता था। मैं अक्सर देखता था कि खुदा की अता की हुई इन सब नेमतों का एहसास उनको कितनी तमानियत और मुसर्रत बख्शता था। वो कोठी को पोर्च में खड़ी हुई कार को, आरास्ता कमरों की पूरा साइश लवाजमात को और जिंदगी के इस हसीन इंतजाम को देख देख कर देरे लब मुस्कुराते रहते थे। लेकिन कभी कभी मैं देखता था कि ये मुस्कुराहट यकलख्त काफूर हो गई है, यूं जैसे 14वीं शब की चांदनी को बादल का एक टुकड़ा छुपा दे। वो कहते थे, सिकंदर कितना अच्छा होता अगर आज हम दोनों के साथ वो सब भी होते, उनकी खुशी से हमारी खुशी में कितना इजाफा होता। वो सब मेरे भाई बहन थे और मेरी माँ थी और एक बूढ़ी दादी थी। मौत से किसको रस्तगारी है मगर वक्त की इस बेरहमी का दाग कहाँ जाता है जिसका एक कातिल लम्हा जिंदगी के सफर में साथ देने वालों को यूं समेट कर ले जाए जैसे तेज आंधी खुश्क पत्तों को उड़ा कर ले जाती है। मैं इस वहरान मदफन जैसे कमरे की सपाट दीवारों पर उस जिंदगी का हर अक्स देख रहा था जो ख्वाब फरियाद की तरह बेवजूद हो गई थी। और मेरे लिए ये तसव्वुर करना दुश्वार था कि जिस शख्स ने अपने अज़्मो इस्तक़लाल से तमन्ना और बेसहारा जाने के बावजूद जिद्दोजहद का आगाज मलबे के ढेर से किया हो और कामयाबियों की काबिल रिश्क की इमारत खड़ी करनी हो, वैसी कसम परसी, बेचारगी, माजूरी और महरूमी और जिल्लत और रुसवाई के साथ इस काल कोठरी में मुफलिसी का आजाब झीलते चुपचाप मर गया। उसने एक बार भी तो नहीं कहा कि बेटा मैं बूढ़ा हो गया हूँ और बीमार हूँ और हर तरफ से दुश्मनों का इसार तंग होता जा रहा है। जवान बेटा बुढ़ापे की लाठी होता है, आओ अब मुझे सारा दौर ये महाज संभालो। ये तवक्कुआत तो सभी वालिदैन रखते हैं कि औलाद बड़ी होगी तो उनके हर दुख को सुख में बदल देगी। वजीर खान तुमने ऐसा क्यों नहीं किया? मैं इतने बड़े एहसान की सजा का मुस्तहिक तो ना था। बस करो बरखुरदार। सलामत शाह ने हमदर्दी से मेरे कंधे पर हाथ रखा, आओ इधर मेरे कमरे में बैठो। आधे घंटे बाद वो मेरे लिए चाय बना के ला चुका था और अपनी छलंगा सी चारपाई पर मेरे सामने बैठा था। कमरे में लकड़ी की एक ही कुर्सी थी जिस पर तकिया रख के उसने मुझे बिठा दिया था। मेरे वालिद के आखिरी अय्याम में आप ही उसके सब कुछ थे। मैंने तबीयत समझ जाने के बाद कहा, आपने यकीनन बहुत कुछ किया होगा और इस एहसान का अजर खुदा दे सकता है। मैं ये दावे किस मुंह से करूं कि इसका बदला चुका दूंगा। अब इन बातों का कोई फायदा नहीं है, सलामत शाह ने कहा। खुदा को यही मंजूर था, वरना यही सब कुछ मेरे साथ होता तो वो मेरे काम आता। और वो लड़का क्या करता जो विलायत में कोसों दूर बैठा है? मैं चूंका, आपका भी कोई लड़का है बाहर? हाँ जी, एक ही बेटा है, डॉक्टरी कर चुका था, आला तालीम के लिए गया हुआ है, वो फख्र से बोला। और उसकी आंखों में गुरूर की वही पुरमुसर्रत चमक उतर आई जो मैंने अपने वालिद की आंखों में भी देखी थी। हमारे हालात बहुत हद तक एक जैसे थे। मेरा भी इस बेटे के सिवा दुनिया में कोई नहीं, लेकिन मैंने वो दुख नहीं झीले जो वजीर खान ने उठाए। मेरा यही एक बेटा जिसकी माँ बदबख्त मेरा साथ छोड़ गई थी। एक सेठ का बिगड़ा हुआ लौंडा उसे वरगला के मुंबई ले गया था।
मालूम नहीं वहाँ उस पर क्या बीती, मुझे उसका कोई रंग नहीं। यूं पल भर में मेरा पूरा खानदान चटपट हो जाता तो मैं दीवाना हो गया होता। उसके बाद वो मुझे अपने दादा के आखिरी अय्याम की रुदात सुनाता रहा, जिससे मुझे अंदाजा हुआ कि जो कुछ उसे मालूम है वो हकीकत का एक हिस्सा है, बेज़रर और पर्दादार। सवाल मैं ये पूछना चाहता था कि मेरे वालिद ने आखिरी अय्याम में उस बेज़मीर शख्स के पास मुलाजमत क्यों की जो उनके एतमाद को धोखा दे चुका था और कानून की गिरफ्त से बच गया था, लेकिन उनका मुजरिम तो था। सारे शहर में बेहिसाब लोग ऐसी ही कोठियों में आबाद थे और उनमें से कोई भी तरस खा के उनको घर में मुलाजिम रख सकता था। चिराग दीन से नौकरी की भीख मांगने और कल तक अपने टुकड़ों पर पलने वाले एक मामूली मुलाजिम क्या तो जिल्लत कबूल करने में उन्होंने क्या मसरत देखी थी? क्या वो चिराग दीन को सजा देना चाहते थे जो इस दुनिया का निजाम इंसाफ ना दे सका क्योंकि शहादत ना काफी थी? मगर वो खुद जबान की नहीं दिल की गवाही से कायल थे कि चिराग दीन मुजरिम है और उम्र ने वफा ना की, वरना उसे ये सजा जरूर मिलती। मेरे वालिद हमेशा कहते थे एतमाद को धोखा देने से बढ़कर गुनाह कोई नहीं है, हिम्मत है तो दिन दहाड़े डाका डालो, मगर मामला एतमाद का हो तो पाई पाई की हिफाजत अमानत जान के करो। चिराग दीन ने उनके एतमाद को ज़ीक पहुंचाई थी। क्या उन्होंने ख्वाहिशी इंतकाम से मगलूब होके उसके पास मुलाजमत कबूल की थी कि मौका मिले तो? इस ख्याल पर मुझे बड़ी नदामत हुई। मेरे वालिद इस कुमाश के आदमी ना थे। सलामत चाचा, मैंने कहा, मेरे अब्बा जी ने कभी ये बताया कि वो यहाँ के क्यों नौकर हुए थे? हाँ बरखुरदार, जिस सेठ के पास वो पहले मुलाजिम थे उस संगदिल ने वजीर खान की खिदमत गुजारी का ये जिला दिया था कि गेंटिया का आर्दा लाहक होते ही जवाब दे दिया था। सलामत शाह ने आप भर के कहा, पेट की खातिर कहीं तो नौकरी करनी ही थी। खुदा भला करे चिराग दीन साहब का, उन्होंने वजीर खान को रख लिया। मेरे दिल में खलशे खार जाग उठी। आप कब से हैं यहाँ? सेठ चिराग दीन पहले क्या करते थे? मैं 7 साल से हूँ बरखुरदार। इससे पहले सेठ साहब विलायत में थे और कोई कारोबार करते थे। सलामत शाह बोला, अब उनका क्या कारोबार है? मैंने कहा, पहले शाहदरे में तोली और खेस बनाने की फैक्ट्री थी, अब कपड़े की एक बड़ी मिल भी कायम कर ली है। सलामत शाह बोला, अच्छा अगर मैं तुम्हारे सेठ साहब से घर पर मिलना चाहूँ तो किस वक्त मिल सकता हूँ? मैंने कहा, आजकल तो वो मरी में है, हर साल 10 दिन बीवी बच्चों की कब्र पर हाजिरी देते हैं। सलामत शाह ने कहा, हमारी कब्रें उनकी कोठी के अहाते में है, 4 कब्रें। उसने तोबा के अंदाज में कानों को हाथ लगाया। मैंने सुना है चिराग दीन का सारा खानदान एक हादसे की नजर हो गया था। मैंने बेनियाजी से कहा, हाँ बरखुरदार, बड़ा खौफनाक हादसा था। गाड़ी खुद चिराग दीन सेठ का छोटा भाई चला रहा था। 2 प्यारे प्यारे फूल से बच्चे थे, सब के सब स्कूल में पढ़ते थे और उनकी माँ थी जो एक बहुत बड़े अफीसर की बेटी थी, शीरवानी साहब की। वो भी आज मरी गए होंगे, एक दिन के लिए वो भी जाते हैं। शीरवानी साहब? कौन शीरवानी? कुछ मालूम है कि किस महकमे के अफीसर हैं? मैंने सर उठा के पूछा। सलामत शाह ने नफी में सर हिलाया। महकमा तो मैं नहीं जानता, ये सुना है अब वो किसी मुल्क में सफीर होके जाने वाले हैं, उनका ताल्लुक वजारत खारजा से है। मैं उठ बैठा। कोई लड़का है मोहसिन रजा? एक लड़का विलायत में पढ़ता था। सलामत शाह ने कहा, वहाँ किसी गोरे ने उसको चाकू मार दिया। शिरवानी साहब ने वापस बुला लिया। उसी की सबसे बड़ी बहन थी। मेरे जहन में बम का धमाका हुआ जिसने मेरे पूरे वजूद की पूरी इमारत को अंदर से तहस नहस कर दिया। चिराग दीन की बीवी मोहसिन रजा की बहन थी। कैसे कमाल की बात है कि मुझे मोहसिन के बहनोई का नाम मालूम ना था। 3 साल पहले ये इतला लंदन पहुंची थी कि उसका रिश्ता एक ठेकेदार से तय कर दिया गया है। तो मैंने मोहसिन से पूछा था कि ये रिश्ता मरियम को पसंद है और मोहसिन रजा ने तलखी से कहा था, मरियम को पसंद हो या ना हो डैडी को पसंद है। तो बात खत्म। ना मम्मी इख्तलाफ कर सकती है ना मैं बोल सकता हूँ। डैडी खुद सर आदमी है और उनकी मर्जी के आगे किसी की मर्जी नहीं चलती। मैंने तो सिर्फ इतना सुना है कि लड़का अच्छा है और खासा कमा रहा है, इससे ज्यादा मुझे कुछ मालूम नहीं है। यार मोहसिन, मैंने थोड़े तामिल के बाद कहा था, मरियम तो शायद उस प्रोफेसर को पसंद करती थी जो शायर और कुछ अफसाना निगार वगैरह था। फिर क्या हुआ? वो तो इस उम्र में सब लड़कियां किसी न किसी दानिशवर क्रिकेटर या शहजादा गुलफाम को पसंद करने लगती हैं, क्योंकि जनाना नावलों के मुताले से मिसाली शरीके हयात की यही तस्वीर बनती है। मोहसिन रजा ने उसी तलखी से कहा था। बाद में सब कुछ भूल जाती हैं और इसी हकीकत को तस्लीम कर लेती हैं कि कामयाब अज़वाजी जिंदगी का तसव्वुर उस चीज के बगैर नामुमकिन है जिसे फकीर खात का मैल कहते हैं, और दौलतमंद अपनी जिद्दोजहद का इनाम रोमांटिक हीरो बदस्तूर नावलों में खूबसूरत डायलॉग बोल रहे हैं और आसमान के चांद तारे तोड़कर लाने के दावे कर रहे हैं। इनकी साबिक महबूबाएं कारों में घूम रही हैं और ठेकेदार टाइप शोरों की दौलत से गर्मियों का सीजन मरी में गुजार रही हैं। हम लोग उस शादी में शरीक नहीं हुए थे। 1 साल कबल जब हमें मरियम की मौत की खबर मिली थी तो मुझे मोहसिन की 3 साल पहले की बात याद आई थी। मरियम मरी से सीजन गुजारी से लौटते हुए कार के खड्ड में गिर जाने से हलाक हो गई थी। बाद में लोगों ने हमें बताया कि उसकी कार का ब्रेक फेल हो जाने के बायस कई हजार फुट गहरे खड्ड में लुढ़कती हुई नीचे पहुंची थी तो उसमें आग लग चुकी थी। तलाश करने वालों को इधर उधर से लाशों के पुर्जे और 4 मुख्तलिफ जिस्मों के आज़ा मिले थे जिनको इकट्ठा करके अंदाजे से 4 कब्रों में दफन कर दिया गया था।
محسن بہت رویا تھا. بڑی بہن اسے تمام بہن بھائیوں سے زیادہ چاہتی تھی. شادی کے کارڈ میں مریم کے ہونے والے شوہر کا کیا نام لکھا ہوا تھا اس پر میں نے غور نہیں کیا تھا. اہم صرف مریم کا نام تھا جس سے میری جذباتی وابستگی صرف ایک یاد سے وابستہ تھی. ایک بار اس نے کھانے کی میز پر سب کے درمیان بیٹھ کر مجھ سے سرگوشی میں کہا تھا, سکندر میں شرط لگا سکتی ہوں کہ تم اور فوزیہ ایک دوسرے کو چاہتے ہو. جی؟ میں اچھل پڑا تھا. جی ہاں, میں نے ادھر ادھر دیکھ کر اور بوکھلا کے کہا تھا. اس سڑبڑاہٹ میں میرے ہاتھ سے چمچہ گر گیا تھا. ایک گلاس الٹ گیا تھا اور نوالا میرے حلق میں یوں پھنس گیا تھا کہ سانس رکنے سے میرے آنسو نکل آئے تھے. چنانچہ سب لوگ ہنسنے لگے تھے جن میں فوزیہ بھی شامل تھی. جب مریم کے مرنے کی خبر ملی تو مجھے ایسا محسوس ہوا تھا جیسے مجھے فوزیہ سے ملانے والا ایک قابل اعتماد پل گر گیا ہے. میں نے بڑے ہیلوں بہانوں سے یہ پوچھا تھا کہ مرنے والوں میں فوزیہ تو نہیں تھی, اور اس وقت بھی مریم کے شوہر کا نام اگر سنا تھا تو غیر اہم سمجھتے ہوئے نظر انداز کر دیا تھا. مجھے محسن رضا کی ایک اور بات یاد تھی جب وہ بار بار کہتا تھا, یار سکندر گاڑی نہیں تھی, ابھی 2 مہینے پہلے ہی خریدی گئی تھی. چند روز قبل پنڈی کی سروس ورک شاپ گئی تھی, اس کے بریک کیسے فیل ہو گئے؟ حقائق سے بے خبری کے باعث اس وقت میں نے روایتی جواب یہ دیا تھا کہ موت کا ایک دن معین ہے جو کسی طرح بھی ٹالا نہیں جا سکتا. سلامت شاہ میرے خیالات کی روح سے بے خبر اس حادثے کی تفصیلات بتانے میں مگن تھا جو مجھے پہلے ہی معلوم تھی. سلامت چاچا, میں نے کہا, میرے والد نے کچھ سامان تو چھوڑا ہوگا. سلامت شاہ کا چہرہ متغیر ہو گیا. ہاں, ایک بستر اور چند کپڑے تو اب بھی کمرے میں موجود ہے. چند دن پہلے اس نے مجھے ایک لاکر کی چابی دی تھی جو میرے پاس محفوظ ہے. دوسری چابی صندوق کی تھی. مجھے نہیں معلوم اس صندوق میں کیا تھا جو وزیر خان کے پلنگ کے نیچے ہمیشہ مکفل رہتا تھا. اگر میں نے کھول کر دیکھ لیا ہوتا تو اچھا ہوتا. وہ اچانک چپ ہو گیا. پھر کیوں نہیں دیکھا؟ میں نے غور سے اس کی صورت دیکھ کر کہا. بات کچھ سمجھ میں نہیں آتی برخوردار. وہ کچھ دیر بعد بولا, بہت سی باتیں ہیں. ایک تو یہ کہ وزیر خان کی صحت اسی نامراد گینٹیا کے عارضے سے خراب تھی, لیکن جوڑوں میں درد کے سوا جو سردیوں میں بڑھ جاتا تھا اور گرمیوں میں کبھی کبھار تکلیف دیتا تھا, اسے اور کوئی مرض لاحق نہیں تھا. اس کا بھی وہ عادی ہو گیا تھا. وہ ایسا ایسا چلتا تھا اور سیڑھیاں نہیں چڑھ سکتا تھا, لیکن معذور نہیں ہوا تھا. وہ تو سرکاری ڈسپینسری تک لاٹھی ٹیکتا پیدل ہی جاتا تھا. میری سمجھ میں نہیں آتا کہ رات کو وہ بھلا چنگا سویا تھا, صبح کیوں مر گیا؟ مرنے والی کوئی بات تو نہ تھی. میں کچھ دیر تک اس انکشاف پر دنگ بیٹھا رہا. میرے ذہن میں امکانات کے ہزار در کھل گئے تھے جو سب شکوک و شبہات کے آسیب زدہ اندھے تہہ خانوں میں اتر رہے تھے. چاچا سلامت, کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ میرے ابا جی کے موت کے اسباب قدرتی نہ ہوں, انہیں قتل کیا گیا ہو؟ سلامت چاچا بوجھ رہ گیا. قتل؟ یہ کیا کہہ رہے ہو برخوردار؟ اس نے گھبرا کے خوف زدہ لہجے میں کہا. ہاں قتل. میں پوسٹ مارٹم کروا سکتا ہوں, لاش دوبارہ قبر سے نکالی جا سکتی ہے. میں نے کہا.